Parivitacharya, Astrottara Saraswati Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivitakacharya Astottara Satshri Srimad. His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuti. आज हम दूसरा स्कंद भागवतम से 7वां अध्याय में से 9वां श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। यद्वे नमुत्पतकतं द्विजवाक्यवज्राय निष्प्लोष्टपूर्षभगं विरहे पतञ्जम् रावर्तितो जगति पुत्रपदं शमेवे दुग्धा वसूरि वसुधा सकला नियेना. Translation: Maharaj Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this King Vena was burned with his good deeds and opulence, and was en route to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son by the name of Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. Covered by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. According to the system of Varnashrama Dharma, the pious and the learned Brahmanas were the natural guardians of society. The Brahmanas, by the learned labor of love, would instruct the administrative kings how to rule the country in complete righteousness. And thus the process would go on as a perfect welfare state. The kings or the Kshatriya administrators would always consult the council of learned Brahmanas. They were never autocratic monarchs. The scriptures like Manu Samhita and other thrice books of the great sages were guiding principles for ruling the subjects, and there was no need for less intelligent persons to manufacture a code of law in the name of democracy.
The less intelligent mass of people have a very little knowledge of their own welfare, as a child has a very little knowledge of its future well-being. The experienced father guides the innocent child towards the path of progress, and the childlike mass of people need similar guidance. The standard welfare codes are already there in the Manu Samhita and other literatures. The learned Brahmanas would advise the king in terms of those standard books of knowledge and with the reference to the particular situation of time and place. Such Brahmanas were not paid servants of the king, and therefore they had the strength to dictate to the king on the principles of scriptures. This system continued even up to the time of Maharaj Chandragupta, and the Brahmana Chanakya was his unpaid prime minister. Maharaj Vena did not adhere to this principle of ruling and has disobeyed the learned Brahmanas. The broad-minded Brahmanas were not self-interested but looked to the interest of complete welfare for all the subjects. They wanted to chastise King Vena for his misconduct and so pray to the Almighty Lord as well as curse the king. Long life, obedience, good reputation, righteousness, prospects of being promoted to the higher planets, and blessings of great personalities are all vanquished simply by disobedience to a great soul. One should strictly try to follow the footsteps of great souls. Maharaj Vena became a king undoubtedly due to his past deeds of righteousness, but because he willfully neglected the great souls, he was punished by the loss of all the above-mentioned acquisitions. In the Vamana Purana, the history of Maharaj Vena and his degradation are fully described. When Maharaj Prithu heard about the hellish condition of his father, Vena, was suffering from leprosy in the family of Amlecha, he had once brought the form of king to Kurukshetra for his purification and relieved him of all suffering. Maharaj Prithu, the incarnation of God, descended by the prayer of the Brahmanas to rectify the disorders on earth. He produced all kinds of crops, but at the same time he performed the duty of a son who delivers his father from hellish conditions. The word putra means one who delivers from hell, called putra, that is a worthy son. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Para Sahagana Lalita Shri Vishakam Vivansha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
श्रीवासवी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं मंगलं करोति यत्र पादमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्ण। आज हम दूसरा स्कंद भागवतम से 7वां अध्याय में से 9वां श्लोक ले रहे हैं। मैं सभी भक्तों को इस मंगलवार कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ और आप सब लोग के आशीर्वाद से हमें ये जो अवसर मिला है श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रवण कीर्तन करना, ये उनकी असीम कृपा है। ये जो भाग्य मिलता है ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हे ब्रह्मांड प्रमिते को न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। इतने सभी लोगों में बहुत कम लोगों को रुचि रहता है, और हालांकि ये कलयुग में तो आध्यात्मिक किसको रुचि रहता ही नहीं है। तो ये सब तो और भी टाइम है हमारे लिए। तो जो व्यक्ति को इसका मूल्य पता है वही व्यक्ति इसका बताते कि इसका सौभाग्य का उपयोग करता है। तो जैसे हम भगवान के अलग अलग बताते कि लीलाओं के बारे में इस भागवतम दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को और ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तो भगवान की अवतार मतलब जैसे समुद्र के लहरे के समान है, उनको कोई गिनती नहीं कर सकता है। फिर भी हम जैसे जो बद्ध जीव है, हमारे शुद्धिकरण के लिए व्यासदेव जी और बाकी प्रमुख आचार्य ने जितनी हमारे पास सामर्थ्य है और जितनी हमारे शुद्धिकरण की जरूरत है, भगवान की लीलाओं को इस श्रीमद् भागवतम में डाले हैं। तो ऐसे उनकी अनगिनत लीला है। तो हम ऐसे बहुत सारे लीला के बारे में चर्चा किए थे। जैसे पहले हमें अवसर मिला था नर नारायण ऋषि, उससे पहले भगवान वराह देव के अवतार के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज और एक भगवान की लीला है, अवतार है। क्योंकि मैंने तो जैसे सभी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिए हैं, सभी को पता है भगवान के प्रमुख अवतार है विष्णु से 10 अवतार निकलते हैं। मत्स्य पूर्व वराह नरसिंह वामन मत्स्य पूर्व नरसिंह वामन राम कृष्ण बुद्ध कल्कि, ये 10 अवतार है। पर वो छोड़ के बाकी के भी बहुत अवतार है। तो जब तक हम इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में नहीं आए हैं, मुझे तो पता नहीं था ये अवतार भी भगवान विष्णु के हैं। ये मोबाइल तो मैं कृष्ण भक्ति आने से पहले जब तक इस श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं भगवान की इतने सारे अवतार हैं। तो आज एक अवतार है महाराज पृथु महाराज। कितने लोगों ने सुना होगा पृथु महाराज के बारे में? पृथु महाराज भगवान के अवतार थे। और
बताते कि नवविधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम और then the 9 process, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम। तो इस नव में हर व्यक्ति को एक उदाहरण रखे हैं। जैसे श्रवणम के बारे में जब श्रवणम के बारे में पूछते हैं तो हमें किसका स्मरण आता है? परीक्षित महाराज। किसका? परीक्षित महाराज। कीर्तनम करते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद श्रवणम कीर्तन, विष्णु स्मरणम, स्मरणम करते विष्णु स्मरणम मतलब परीक्षित प्रहलाद महाराज, सीता, ओके वो भी है स्मरणम। पर मेन है कि जो भागवत में बहुत सारे भक्त है पर उसमें से 2-3 प्रमुख भक्त को दिए हैं। उसी तरह अर्चनम करते वक्त ऋतु महाराज का स्मरण आता है। ऋतु महाराज महाजन भी है, 12 महाजनों में एक महाजन भी है और नवविधा भक्ति में अर्चनम के जो मुख्य उदाहरण है वो ऋतु महाराज है। तो आज ये जो श्लोक जो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि इनका अवतार कभी हुआ था, ये किस अवतार में और किस मनवंतर में हुआ था बताते हैं। और ये किस बताते कि किस कुल में आते हैं। आपको पता है कि महाराज उत्तराबाद के पुत्र ध्रुव हते। ये ध्रुव महाराज के कुल में आते हैं। ध्रुव महाराज के बाद उनके पुत्र और उसी कुल में एक बहुत अच्छे प्रमुख राजा थे, महाराज अंगा बताते कि आज भी उनका नाम लोग भागवत में उनके बारे में चर्चा करते हैं। बताते कि एक राजा वैसे थे जो अपने प्रजा के एक हित के लिए रहते थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। जो प्रजा का हित सोचता है वही राजा है। अब तो आज के समय में तो कोई राजा कल के ऐसे भारत में है नहीं, पर जो भी प्रमुख लीडर है उसको बोलते कि वो एक राजा के सम्मानी है और वो पॉलिटिकल लीडर का फर्ज बनता है कि वो प्रजा की हित के लिए सोचना चाहिए। पर आजकल बोलते कि ये जो पॉलिटिक्स और राजकारभार ऐसा हुआ है कि सभी अपनी गद्दी के लिए और इसमें कितना प्रजा से खींच सकते हैं उसके पीछे में है, क्योंकि कलयुग की दशा है। कलयुग में मतलब कि प्रजा को सताने के लिए, लोगों को त्रास देने के लिए गवर्नमेंट आ जाता है, तो कोई भी संतुष्ट नहीं है, सभी प्रजा भी दुख है और सभी यही सोचते कि एक अच्छा दिन कभी आएगा। सो नो प्रॉब्लम, ये कलयुग का स्वभाव है। पर महाराज अंगा वैसे नहीं थे। महाराज अंगा सिर्फ उनके प्रजा के हित के लिए सोचते थे। ऐसे बहुत सारे पूर्वज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महाराज अम्बरीश, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बता दें कि उत्तरकांड में रामायण में वो स्थिति आ जाता है कि जहाँ जब भगवान श्री रामचंद्र को पता चलता है कि प्रजा मेरे कार्य से खुश नहीं है, तो उनको खुद अपने ऐश्वर्य को त्यागना पड़ा, उनकी जो दौलत संपत्ति माता सीता को त्यागना पड़ा, क्योंकि ये उदाहरण दिखाना चाहते थे कि राजा अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, जो प्रजा का हित सोचता है वही राजा रहता है। उसको राजा इसलिए दिया गया है, इज रेस्पॉन्सिबल। उसी तरह महाराज अंगा बहुत एकदम एक उदाहरण पूर्वक राजा थे, हमेशा अपने प्रजा के हित के लिए सोचते थे। तो एक बार के समय था कि वो यज्ञ करते थे, यज्ञ करने लगे। उन्होंने एक बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किए थे। वो उस समय की बात थी। वो युगों में जैसे सत्य युग या त्रेता युग या द्वापर युग, ऐसा नहीं कि हवन रख दिए और 2-3 ब्राह्मण
डाल के हवन बना दिए। वो जैसे बताती कि वो एक कर्मकांड यज्ञ है। उस समय यज्ञ जब होता था, यज्ञशाला, बताते कि सत्य युग में वो युग धर्म ही था। जैसे इस कलयुग का युग धर्म है हरिनाम करना, संकीर्तन, मतलब यज्ञ ही संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधशः। इस कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ। सभी भक्त लोग आकर भगवान का हरिनाम लेते हैं, क्योंकि मनुष्य होने के बाद सभी व्यक्ति को यज्ञ करना आवश्यक है। ये युग धर्म है, युग धर्म। जो व्यक्ति जिस युग में आते हैं, अगर वो युग में आने के बाद वो युग धर्म का पालन नहीं करता है, then he is not a human being, वो मनुष्य नहीं कहला सकता है। तो जो मनुष्य जन्म लेता है, he has to do यज्ञ, वो यज्ञ करना ही है। तो सत्य युग में उस समय ये युग धर्म था कि बड़े बड़े हवन रखना, बड़ी बड़ी यज्ञ रखना, और वो यज्ञ ऐसा रहता था कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उसका बराबर प्रोनाउंसिएशन रहना चाहिए। जब आप पठन करते हो, जब आप उच्चारण करते हो मंत्र का, ऐसा उच्चारण करना चाहिए कि हर उसका जो मीटर्स है वो इतने ध्यान पूर्वक और ऐसे योग्य ब्राह्मण करना चाहिए कि अगर एक शब्द का उल्लेख में ऊपर नीचे हो जाए तो यज्ञ का पूरा रिजल्ट उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए क्वालिफाइड ब्राह्मणस, जो योग्य ब्राह्मण को ही बुलाया जाता था। सिर्फ ये जो उपनयन पहन के ब्राह्मण नहीं होता था, उसमें गुणी ब्राह्मण होना चाहिए, गुण। नहीं तो आजकल बोलते कि अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पूर्वज ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मण का गुण ही नहीं है। प्रॉपर होते कि बोलता है ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण हैं, हम उधर के कुल के, हम चतुर्वेदी है, पर बाद में थोड़े वो बीड़ी फूकने लगता है। ये कौन सा ब्राह्मण है? ब्राह्मण मतलब शौच्यम, शौच्यम, वो ब्राह्मण का गुण रहना चाहिए। सिर्फ जन्म में ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए कलो शूद्र संभव, इस कलयुग में सब लोग शूद्र ही है। हम कितना भी बोले हम ब्राह्मण, जब तक रिफॉर्मेटरी, जब तक एक गुरु की आज्ञा, उनके शरणागति में और ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, उसको ब्राह्मण नहीं कहला जाता है। तो उस समय जो यज्ञ करते थे, योग्य ब्राह्मण रहते थे। आपने सुना होगा, जैसे हमको तो उतना ध्यान नहीं है, पर जैसे हर पुराण या बोलते ना सामवेदा, यजुर्वेदा, इसमें सब निपुण रहते थे। ये सब जो ये जो श्लोक उच्चारण करते हैं उसमें मीटर्स रहता है। जैसे पुरुष सूक्त आपको में सुना होगा, पुरुष सूक्त भगवान का अभिषेक होते, पुरुष सूक्त गाते, हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रनाथ, मतलब हर उसका मीटर्स रहता है, ऊपर नीचे। इट इज नॉट लाइक एनीवन, क्योंकि उसका हर मीटर का मतलब रहता है। तो वैसे ब्राह्मण लोग आके भगवान का नाम का उच्चारण करके हवन करते थे। और जब भी हवन करते थे, जैसे इंद्राय नमः, श्री इंद्राय नमः, जैसे बोलते थे, क्या बोलते ना, इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, सूर्याय स्वाहा सूर्याय नमः। मतलब जो हवन ऑब्लेशंस डालते थे, ये सूर्य देव के लिए, ये इंद्र देव के लिए, और उसके बाद सूर्याय नमः, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। उसका मतलब आपके लिए, इट इज नॉट फॉर मी। तो ये यज्ञ उस सत्युग में होता था। तो एक बार महाराज अंग ने इतने विशाल यज्ञ किसके लिए? प्रजा के हित के लिए करते थे, क्योंकि राजा होने के बाद उसका परम कर्तव्य है प्रजा का हित के लिए। इसलिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय जब यज्ञ होता था, यज्ञ का फल मतलब क्या है? यज्ञ संपूर्ण हो गया, यज्ञ सक्सेसफुल। कैसा पता चलता है यज्ञ संपूर्ण हो गया, यज्ञ सक्सेसफुल? जैसे हम लोग जब जाप करते हैं, ये यज्ञ है, कैसा पता चलता है हमने ये जाप बराबर किया? अगर हमने ध्यान पूर्वक किया तो इसका मतलब आपका जाप सक्सेसफुल है। अगर हमने ध्यान हट गया, दैट मीन्स उस दिन का यज्ञ बराबर नहीं हुआ है। प्रयास करना चाहिए, कलयुग में ध्यान रखना ही बहुत मुश्किल होता है। पर उसी तरह यज्ञ का फल मतलब जब देवगण, जब इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, जब उनका आहुति डालते हैं, तो जब देवगण आके स्वीकार करते हैं, तो उसका मतलब यज्ञ संपूर्ण हो गया है।
अगर देवगण नहीं आए हैं, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अगर इन लोग बोलने के बाद, इनका उच्चारण करने के बाद अगर ये नहीं आए, इसका मतलब यज्ञ में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कुछ तो 19-20 का कुछ गलती हो गया है। तो महाराज अंगा ऐसे ही करते करते एक बार जब यज्ञ है साले तो कोई आ ही नहीं रहे, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कोई आए, तो बोलते कुछ क्या हुआ। हमारा जानकर ने अभी ऐसा नहीं बोला ये तुम्हें कोई गलती है क्या, कौन ब्राह्मण नहीं है, चलो उच्चारण, उसमें दोनों में गले, या घी की जगह में डालडा तो नहीं डाला, या कोई तेल तो नहीं डाला, क्योंकि उनको तो महाराज अंगा ने सभी ऋषियों से पूछे मुझसे क्या गलती हुआ है, ये ब्राह्मण देवता आप लोग उच्चारण बताइए मुझसे क्या, नहीं तो हम लोग क्या करते, अगर हवन बराबर नहीं तो हम किसको दोषी ठहराते, अरे वो बट है ना, बट जी वो उससे बराबर नहीं किया इसलिए आज मेरा अपुरुष है, जीवन में पूरा पूजा बराबर नहीं किया उसके वजह से। महाराज अंगा ने वो नहीं बोला, कारण होगा मैं, ये मेरे वजह, मैंने तो अरेंज किया था, मैंने आयोजन किया था, इसका मतलब ये लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब कारण मैं हूँ, मुझसे कुछ गलती हुआ होगा। तो सभी ब्राह्मण देवता से पूछते मेरा क्या गलती है, ये लोग क्यों नहीं आ रहे, आहुति डालते ये लोग लेने के लिए आना चाहिए। तो तभी ब्राह्मण देते देखे इतने विद्वांस थे, पूछाने के ब्राह्मण सब इतना विद्वांस थे, उन लोग एकदम विचार विमर्श करके तुरंत बताए कि महाराज अंगा हमें पता है कि आप बहुत पुण्य स्थिति के राजा हो, आप में बहुत पुण्य भरा हुआ है, आप नीति के शास्त्र का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हो, पर आपके पहले जन्म में कुछ तो बुरा कर्म हुआ होगा, इसलिए आपको पुत्र का स्वभाव ये नहीं मिला है, आनंद नहीं मिला है, आपकी जो संतान नहीं है, आपके जीवन में संतान नहीं है, इसलिए जो राजा ये यज्ञ कर रहे हैं, देखिए उस समय का रूल है, अगर उसके पास संतान नहीं है, आने वाली पीढ़ी नहीं है, तो अन्य देवगण आकर आहुति स्वीकार नहीं करते हैं। तो महाराज अंगा को बहुत बुरा लगा, हाँ मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है। तो उस समय ब्राह्मण बोलते हैं कि आप एक यज्ञ करो, एक ऐसा यज्ञ करो जो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के लिए आराधना करके उनको संतुष्टि करने के लिए यज्ञ करिए, और उनसे आप बता दें कि उनको प्रसन्न करने से तभी भगवान विष्णु की कृपा से आपको जब पुत्र की प्राप्त होगी तो फिर इन लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप विष्णु के संतुष्ट करेंगे तो बाकी अन्य देवगण आ ही जाएंगे, क्योंकि बता देना अगर आप जो पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो बाकी सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी आप जो यज्ञ करेंगे वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ विष्णु के लिए कीजिएगा, उनको याद करके हम लोग एक यज्ञ करते, उसके बाद हम भगवान बाकी अन्य देवगण आ जाएंगे। तो वो स्मरण करते उन्होंने वापस एक बड़ा यज्ञ आयोजन किए, और उसमें भगवान कमल लोचना पद्मलोचना विष्णु की आराधना करके वो यज्ञ किए, और तभी उस यज्ञ कुंड से एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति आते हैं, और उनके हाथ में क्या रहता है, एक कॉमन आप लोग सभी शास्त्र में देखते हैं, अगर जब भी यज्ञ होता था जैसे रामायण में या इवन द्रुपदा या कोई भी यज्ञ आता था, जब जैसे इवन समुद्र मंथन करते वक्त धनवंतरी भी जब आए थे, एक निकलते भगवान के अंश एक बताते कि सोने का एक मटका लेके निकलते हैं, कमिंग होते यज्ञ आप विजुअलाइज कीजिए, आपको टीवी में आजकल दिखाते हैं, पर सचमुच में ये काल्पनिक नहीं है, वो यज्ञ कुंड से एक व्यक्ति निकलते एक मटका लेके, सोने का मटका, और उसमें क्या रहता है, खीर। So very predictable, शास्त्र इसका अनप्रडिक्टेबल है, हाँ इसका मतलब वो मटके में खीर रहता है, उसमें बाकी कुछ नहीं रहता, आइसक्रीम या चॉकलेट या उसमें खीर रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो खीर वो जाके महाराज अंगा को देते हैं, महाराज अंगा को लेते हैं। अभी उनकी विवाह एक्चुअली महाराज अंगा एकदम शुद्ध थे, उनकी विवाह हुआ था किससे, उनकी पत्नी
बताते कि वो किसकी बेटी थी? मृत्यु की बेटी थी। डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु। अरे मृत्यु मतलब सब लोग डरते हैं, अरे बाप रे, बोलते ना as cruel as death। मृत्यु मतलब एकदम क्रूएल, एकदम कठोर, कुछ देखता नहीं है, कुछ भी हो, नादान बच्चे को उठा के लेके जा रही, ऐसा भी क्रूर, मृत्यु इतना भी क्रूर है। अब एकदम नजदीक वाले को भी, पति पत्नी या जो भी हमारे सगे संबंधी को एक मिनट भी नहीं लगता है, मृत्यु बोलते वो एकदम क्रूर रहता है। तो मृत्यु परसों, मृत्यु की जो बहन बेटी थी वो थी सुनीता के साथ महाराज अंगा का विवाह हुआ था। उसमें से संतान नहीं आया, तभी उनको ही यज्ञ करना पड़ा। और वही जो पायसम है, भगवान की जो खीर है, उन्होंने जाके सुनीता को दे देते, इसको स्वीकार करो। और जब सुनीता उसको ग्रहण करती है, तुरंत थोड़े समय भगवान की जो फल है आशीर्वाद, उसमें वो गर्भवती बन जाती है। तो महाराज अंगा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चलो अब तो मैं कभी भी मेरे युग धर्म करते हुए एटलीस्ट बाकी देवगण खुश तो हो जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं भगवान ने दिया ना, कभी भी हम बोलते ना, कभी कभी स्त्री कभी गर्भवती नहीं होती, और गर्भ होने के बाद बहुत साल के बाद जब आते बोलते, हम लोग क्या बोलते, भगवान का फल है, भगवान की देन है, ये भगवान का प्रसाद है, स्वीकार। क्योंकि एक बालक का जन्म होना, एक गृहस्थ आश्रम में एक शिशु का प्राप्ति होना उतना सुलभ नहीं है। कितना भी आजकल मॉडर्न सिस्टम रहेगा, IVF और IVF और IUI जो भी है, जब तक उनका सैंक्शन नहीं होता है, जब तक उनकी कृपा नहीं होता है, एक शिशु मिलना उतना पुण्य कर्म जमाना पड़ता है। मैं कहानी से थोड़ा हट के आपको बताता हूँ कि जब महाराज धृतराष्ट्र कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे इतने सारे 100 पुत्र थे, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मेरे 100 पुत्र के बल मुझे देखना पड़ा। तभी कृष्ण बताते हैं कि तुमने 50 जन्म पहले तुमने बोलते कि एक शिकारी थे, और तुमने एक अंधे पक्षियों का 100 बच्चे को तुमने मार दिया था। इसलिए तुम्हें ये जो बोलते ना, ये जो रिएक्शन है, ये कर्म का जो फल है, तुम्हें 50 जन्म के बाद मिल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने 50 जन्म की उसी टाइम मिलना चाहिए था, दूसरे जन्म में मिलना चाहिए। तभी वो बोलते हैं धृतराष्ट्र, एक शिशु पाने के लिए उतना पुण्य कर्म जमाना पड़ता है। तुम्हें 100 पुत्र जन्म प्राप्त होने के लिए तुम्हें 50 जन्म लेना पड़ा, इसके बाद तुम्हें 100 पुत्र मिलते हैं। इसलिए एक शिशु मिलना ही भगवान की असीम कृपा है, वो एक भगवान की फल है। तो कितने जन्म शुद्ध पुण्य कर्म के। तो उसी तरह महाराज अंगा और सुनीता को एक पुत्र मिला, उसका नाम था वेणा। अभी ये वेणा बता दें कि इतना क्रूर था, इतना दुराचारी था। तो कोई बोले अरे ऐसा कैसे हुआ, यज्ञ कौन से निकला था, यज्ञ का फल, और यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए वेणा जन्म लिया। अगर ऐसा सब पुत्र मिलते तो मुझे ऐसा पुत्र ही नहीं चाहिए। महाराज अंगा को भी ऐसे ही लगा, रहे ऐसे कैसे हुआ। तो सुनिए, मतलब ये वेणा मतलब सोचिए इतना क्रूर, मतलब जन्म से ही क्रूर। मतलब कभी कभी झगड़ा होता था बच्चों में, तो बच्चे लोग को सीधा मार ही डालता था, और कोई भी प्राणी पक्षी को छोड़ता ही नहीं था। क्रूर मतलब हैवी क्रूर, किसको भी मतलब ये पता ही नहीं। कभी कभी हमारा ऐसा रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसे कैसे हुआ, कि कौन सा। ऐसे कभी बोलते हैं ना, मेरा क्या ऐसा पाप, मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मुझे ऐसा पुत्र जन्म देते हैं, ऐसा कौन सा पाप का कर्म है। एक्चुअली दैट इज ट्रू, हमें पता नहीं है कौन से जन्म का कर्म। तो उसी तरह ये इतना क्रूर था। महाराज अंगा को बहुत सारे टाइम उसको शिक्षा भी देना पड़ा। अरे ऐसा कैसे करते हो, अपने राजाओं के समय ऐसा नहीं करते हो, बहुत शिक्षा है।
उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता था, फर्क ही नहीं पड़ता था, वो वही स्वभाव वापस करता था, फिर वो ऐसे ही वापस हमेशा ऐसे ही। अरे कितना भी शिक्षा दो ना, महाराज अंगा को एकदम परेशान हो जाती है, एकदम परेशान, क्योंकि वो एक नित्य भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, वो हमेशा प्रजा के हित सोचते, खुद का स्वार्थ नहीं सोचते, और उनको पुत्र मोह भी नहीं था, पुत्र का मोह भी नहीं था, वो राजा के लिए प्रजा के लिए सोचते। तभी वो उनको सोचा क्या ऐसे हुआ, और तभी वो उन्हें सोचने लगे। वो एक वाक्य है भागवतम में, इसी में वो आने वाले चैप्टर में है, पर मैं आपको पहले ही बोल देता। तभी वो एक वाक्य उच्चारण करते हैं, अगर मुझे पुत्र ना होता वही अच्छा रहता था, ये मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए गया और ऐसा दुराचारी और ऐसा बता दी कि नीच पुत्र प्राप्त हुई, उससे बेटर था मुझे पुत्र नहीं मिलता था। बेटर टू बी अ childless father rather than having such a son। ऐसा बकवास लड़का वो दिन कभी सुधरता ही नहीं है। मेरे माँ कोई बोलते थे मेरा यही वाक्य एकदम बेकार है। तो महाराज अंदर एकदम बोले एकदम डिप्रेशन में चले गए, कभी सोचे ही नहीं, हमेशा वही सोचते थे मैं जाने के बाद ये क्या होगा, और मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक माता न शस्या पिता न शस्या गुरु न शस्या, वो माता भी नहीं कहला सकता है, गुरु भी नहीं कहलाते, पिता भी नहीं कहला सकते, जब तक अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर कृष्ण भक्ति या भगवान के आचरण और प्रचार के बारे में नहीं बताता है, वो पिता कहने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। तो महाराज शंकर भी सोचे मैंने बड़ा बेकार कर दिया। और देखिए कभी कभी हम सोचते हैं एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, तो तभी उसे अभी मेरा क्या होगा, तभी तुरंत उनको एक विचार आ गया, एक बहुत अच्छा है कि परमात्मा बोले ना, मैं लास्ट टाइम बताया था जिसका कोई भी नहीं तो उसका भगवान है। तो हृदय में परमात्मा तुरंत ही बताते कि विचार देते, महाराज अंगा तुम क्यों दुख हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, Why are you sad? अरे अगर तुम्हें अच्छा पुत्र होता था तो तुम्हें पुत्र आसक्ति ज्यादा होती थी, पुत्र मोह ज्यादा होता था, और वो पुत्र मोह से तुम्हें अपना राज्य कारभार को त्यागना बहुत मुश्किल होता था, और मेरे प्रति आसक्ति नहीं बढ़ती थी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु आप ही मेरे वेल विशर हो। अगर ज्यादा पुत्र मिलते ना, पता नहीं जो कभी कभी होता है जिंदगी में वो अच्छे के लिए होता है। अगर ज्यादा आसक्ति होता था तो राज्य का में हरी मेरा पुत्र और भगवान को बात में यही तो हुआ है, बहुत सारे उदाहरण हुए। थोड़ा सा भी अगर इस भौतिक जीवन में जरा सा भी भगवान को छोड़ के कोई भी आसक्ति हो जाए तो बाद में भक्ति में प्रगति करने के लिए हानिकारक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं ये ऐसा होता तो अच्छा होता, पर हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होते ना, कभी भी पॉजिटिव दृष्टि में फर्स्ट कम क्या कुछ तो कारण तो होगा, मुझे ऐसा मिले दूसरे को दोषी ठहराने से अच्छा खुद को समझना चाहिए क्यों हो रहा है। तो तभी महाराज ने सोचा ये भगवान की नियम है, वो चाहते हैं कि मुझे इस आसक्ति निकलना चाहिए। अगर आसक्ति ज्यादा रहेगा तो भगवान की चरण स्पर्श के प्रति मुझे आसक्ति नहीं आएगा। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि इससे मुझे वैराग्य प्राप्त करना ही है। इसमें ज्यादा आसक्ति रखे कुछ फायदा नहीं है, मेरा फर्ज मैंने किया है, आगे वाला फर्ज भगवान को देख लेंगे। वैसा विचार विमर्श करके महाराज अंगा ने एक दिन एक रात्र को, मध्य रात्र को, जब सब लोग सोए थे, महाराज अंगा ने अपने राज्य को त्याग करके चले जाते मध्य रात्र में, क्योंकि अगर वो सबके सामने बोल के जाते थे तो कोई प्रजा नहीं छोड़ता था।
क्योंकि प्रजा के लिए राजा उतनी प्रिय है जितना राजा को प्रजा प्रिय रहते हैं। ऐसा राजा जो सिर्फ खुद के हित को कभी नहीं छोड़ा, कभी स्वार्थ कभी नहीं सोचा, वैसा राजा को कोई छोड़ेंगे नहीं, आप चले जाओ, नो। इसलिए उनको पता था मुझे प्रजा विरोहित करेगी, उनको नहीं छोड़ेंगे मुझे, इसलिए उन्होंने मध्य रात्र में किसी को बोले बिना वो चले जाते। और तीसरे दिन जब सुबह उठते ना, उस समय बोलते ना, जब राजा के कक्ष के बाहर बहुत सारे गीत गाने वाले आते थे, राजा उठ जाओ, संध्या हो गए, संध्या पूर्वास मंत्र उठ जाओ, तो दरवाजा खुला ही नहीं हो रहा था। तो बाद में देखा तो राजा नहीं है, रानी को भी पता नहीं, किसको, पूरे राज्य में पता है। सब लोग ढूंढने लगते, अरे कहाँ गए राजा, अंगा महाराज, अंगा कहाँ चले गए, अंगा हमारा महाराज, अंगा कहाँ चले गए, किसको पता ही नहीं पूरे। और तभी ये ब्राह्मण लोग जो थे, देखिए उस समय के ब्राह्मण लोग रहते थे, वर्णाश्रम धर्म, उन लोग जाके बोलते, सभी बोलते कहाँ भी नहीं है महाराज, अंदर किधर भी नहीं है, उनको पूरी ढूंढे तो भी किधर भी नहीं है, कहाँ पे भी मिले ही नहीं। तो तभी क्या करें, ऐसा राज्य जिसमें राजा ही नहीं तो कैसा राज होगा। तो तभी देखिए उस समय, देखिए ये वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आजकल तो है ही नहीं है कोई भी किसी का बच रहे। एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म को बोलते हैं हमारे शरीर के साथ तुलना करते, जैसे शरीर में ये दिमाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको मुंडी को काट देंगे तो ये शरीर फंक्शन होगा नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे शरीर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिमाग ये हेड ये निकाल देंगे, अरे दिखेगा ही नहीं ना, ये दिखने से सब हाथ पाए ये सब चल रहे, और सपोज ये हाथों को काट देंगे तो ये चलेगा, हैंडीकैप। उसी तरह ब्राह्मण मतलब द हेड ऑफ द सोसाइटी, क्षत्रिय मतलब भुजाएं, वैश्य मतलब जठर ये हमारे पेट, शूद्र मतलब पैर। सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक नहीं है, पैर का कोई वैल्यू नहीं है, अरे पैर का वैल्यू नहीं है चलेगा कैसे, अरे हाथों का वैल्यू है, हाथ में काम करेगा कैसे, और सबसे बड़े गर्दन ही नहीं है तो सोसाइटी चलेगा कैसे। सो सबसे इंपॉर्टेंट इज ब्राह्मणास। तो उन्होंने सोचा अरे राज्य में, क्योंकि उस समय सिर्फ राजा नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर क्लियरली बताते हैं व्हाई ब्राह्मणास वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण दक्षिणा, अरे ब्राह्मण दक्षिण नो, वो किसके हित में नहीं रहते थे, आपने दिया लिया, नहीं दिया इट्स ओके, नो चार्जिंग, इतना पूजा का 500 रुपया इतना, दैट इज नॉट ब्राह्मण, दैट इज वैश्य। ब्राह्मण मतलब जो दिया वो लिया, जो ज्ञान है वो देते हैं, उनके खुद का स्वार्थ नहीं रहता था, वो बताते राजा अच्छा हो या उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ब्राह्मण। और ब्राह्मण लोग रहना चाहिए, नहीं तो राजा खुद के हिसाब से वो जाके पूछता था काउंसिल में कैसा चलना चाहिए, राज्य कैसा चलना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पूरी मौर्य जो उस समय जो थे, चाणक्य नीति के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि चाणक्य को पता था कैसे राज्य चलाना, उसके ब्राह्मणों को पता था ये राज्य को कैसे चलाना। तो उस समय पता चलता है कि राजा ही नहीं है, अभी करे कैसे। तो तभी एक ही दृष्टि सब लोग के पास जाता है, कौन, किसके पास दृष्टि जाता है, कोई राजा नहीं, एक ही व्यक्ति है, कौन। बोलते ना कभी कभी प्रॉपर बोलते हैं, अगर कोई काका नहीं है तो अंधा काका को बना दो ना, अंधे को काका बना दो। तभी राजा नहीं तो फॉर्मेलिटी के लिए किसको तो बिठाना चाहिए, तो महाराज अंगा से ही निकला हुआ व्यक्ति है ना, वेणा को बिठा देते हैं, चलो वेणा को राज्य में ब्राह्मण लोग से चलो टाइमिंग, अभी तो एकदम दुराचार है, उसका कुछ संभव ही नहीं लगता है, थोड़ा टाइम आने के बाद मैच्योर हो जाएगा, हम लोग है ना उसको मार्गदर्शक करने के लिए, तो तब लोग बोलते चलो ब्राह्मण लोग सोचे उसको वेणा को बिठा दो। सभी मिनिस्टर लोग बोलते अरे क्या कर रहे हो, गलती ये मत करो आप लोग, बाकी किसको नहीं रहने दो, वेणा को डाल दो। अभी बोलते हैं वेणा को जैसे बिठा दिया राजमहल पद में, तो बोलते ना पोजीशन खराब, जब स्थान मिल जाता है सब भूल जाता है, स्थान मिले। अगर किसी को जैसे अगर आप लोग देखे होंगे
कभी क्लास में अगर किसी को मॉनिटर बना देते लीडर में तो वो राजा बन जाते यार तेरा नाम चलो आउट आउट वो सोचता है मैं ही सब लीडर हूँ। तो पोजीशन मतलब करप्ट, किसी को भी कोई लीडर बोले अरे आप लोग सब मेरा सुनना चाहिए, दैट्स इट, मेरे को अरे मेरे को नियुक्त किया यार, मैं आई एम लीडर, पोजीशन इज करप्ट, उसका दादागिरी चालू हो जाता है। तो सभी में वो कंट्रोलिंग नेचर रहता है। तो उसी तरह महाराज वेणा को जब बिठा दिए इन लोग ब्राह्मण लोग, तो उसका चालू हो गया दादागिरी। उस समय तक एक्चुअली जो बाकी जब वेणा रखने पहले उसको राजकारभार देने से पहले ये जो चोर लोग हैं ना, चोर लोग मतलब अरे यार तो राजा ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, सब चोरी। पर जब वेणा आ गया तो सब लोग चोर छुपने लगे, क्योंकि जैसे ये होते ना हिटलर, अगर हिटलर जैसे राजा रहे हो तो हिटलर है, सभी लोग अरे इससे डरना ही चाहिए, वो अच्छी बात है। पर उसका एक दुराचार था, इतना दुरुपयोग और पता नहीं कि इतना स्वार्थी राजा था, वो सोचे अरे मैं राजा है ना, मैं जो बोलता वही चलना चाहिए। वो सभी जगह पे जितना भी भगवान की आराधना चल रहा था उसको रोकने लगा। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मंदिर में जाना जरूरत नहीं है, यज्ञ करना नॉट रिक्वायर्ड, नो चैंटिंग जरूरत नहीं है, मेरा राजा मेरा गुणगान करो। बोले ये किसका गुण है? ये राक्षसी गुण है, ये राक्षसी, ये वेणा का गुण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हमें ये जो इंडिपेंडेंस मिल गया ना भारत में 1947, ब्रिटिश राज्य से हमको स्वतंत्र मिल गया, अरे हम स्वतंत्र हो गए। तो तभी की जो पॉलिटिकल एक लीडर थे वो क्या बोलने लगे, देखो अब तक हम एकदम पीछे थे, हमारा इकोनॉमी एकदम नीचे था, बाकी कंट्री कितने आगे बढ़ गए, हम भी उनके साथ इक्वल लेवल में आना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए? सभी क्षेत्र में हमें प्रगति करना चाहिए। इसलिए ऐसा करो, पूरे भारत में जितना फैक्ट्री है फैक्ट्री बनाते जाओ, और ये जो मंदिर है ना इसका कोई जरूरत नहीं है, ये मंदिर को बदल के आप फैक्ट्री बनाओ। जितना प्रगति करेंगे उतना हम बाकी देशों के साथ ही विल बी इक्वल, दिस इज प्रगति। पूजा करना, पठन करना ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये सब हमारे पूर्वज करते थे, दिस इज नॉट आवर कल्चर। देखिए ये मेंटालिटी किसका है? वेणा का मेंटालिटी, राक्षस मेंटालिटी। पूजा करना सब बंद कर दो, ब्राह्मण यज्ञ मैं ही राजा हूँ, मेरा आराधना करो, मैं जो बोलता हूँ आपके हित के लिए बोल रहा हूँ ना, मेरा पूजा करो, ये सब टाइम पास है। ये जिसको कोई निष्प्रयोग, ये ब्राह्मण लोग सब निष्प्रयोग है, कुछ आता वाता तो कुछ नहीं है, राज्य चलाना कुछ नहीं आता है, निष्प्रयोग है, दूसरे के बोलते भिक्षा में रहते हैं। इनको मैं जो बोलता हूँ चलो ऐसा करो वैसा करो, ये आजकल का कलयुग का जो नियम है ज्यादा, ये वेणा का मेंटालिटी है। अरे गोइंग टू टेम्पल ये सब चल, ओके नाइट हाउस चालू कर दो, 24 आवर्स फैक्ट्रीज चालू कर दो, ओके 24 घंटा, ओके IIT ये प्रोग्रेस, दैट इज प्रोग्रेस। ये मंदिर जाना, भगवत गीता, ये सब कौन है? ये सब इस पे कोई पेट भरता है क्या? ये वेणा का मेंटालिटी है। तो सतयुग में जब ये सब हुआ तो सब लोग ये क्या कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये युग धर्म है, इसको रोक रहा है। यज्ञ करना, यज्ञ पठना पाठना ये सब हमारा युग धर्म है, इसको रोक रहा है। ब्राह्मण को उसको पता नहीं, उसको कोई जरा भी उसको रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। तो तभी उन लोग जो एक इकट्ठा होके बोलेगा, जैसे उसमें से एक थे भृगु मुनि, ये इकट्ठा होके, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोचते ना आजकल के, अरे इन लोग क्या सोसाइटी में क्या है, ये साधु संत लोग को इस सोसाइटी में कुछ उनका कुछ योगदान है? कुछ योगदान नहीं है। ये लोग निष्प्रयोग है, सिर्फ दान दपटा के लिए आते हैं, दान पेटी के लिए कुछ दान करो। साधु का अपमान मतलब सबसे बड़ा अपमान है, ये वैदिक धर्म के अगेंस्ट है। जो व्यक्ति की साधु का लक्षण, साधु का सम्मान नहीं करता है, वो सोसाइटी कभी प्रगति नहीं करेगा। जो ब्राह्मण कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करता है वो सोसाइटी कभी प्रगति नहीं करेगा। अगर हम सोचे वो निष्प्रयोग है, हम जिन दुनिया चलाते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। उसी तरह वेणा भी सोचा,
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये हुआ ही घटना है, हुई घटना, वो कलयुग हो या सत्ययुग या द्वापर युग। ये बताते कि हमारे भारत में हुआ था। हमारे जो बहुत सारे जो पता नहीं मठाधीश लोग थे और महान और बहुत सारे साधु पुरुष, उसमें एक बड़े प्रमुख ये थे साधु। ये 1983-84 की समय की बात थी। तो उस समय ये सभी साधु संत लोग मिलकर एक बार, ये हमारी जो पार्लियामेंट है ना, उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थे उनके पास गए और वो एक विनती किए कि आप इस देश में गो हत्या उसको स्टॉप कर दीजिए, गो हत्या को रोक दीजिए। क्योंकि जिस देश में गो हत्या होता है वो देश कभी प्रगति नहीं करता है। हम साधु लोग हैं, गौ माता की रक्षा नहीं होता है तो वो कैसा प्रगति होगा। इसलिए आप हमारा निवेदन। तो उस समय की जो प्रधानमंत्री बोले ठीक है हम सोचते हैं, देख लेते हैं, आप थोड़े समय के बाद आ जाइए। तो ये साधु संत लोग वापस इसी पार्लियामेंट में जब सभी साधु संत वापस गए थे, तो ये प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे उसने बोला सबको गोली चढ़ा, शूट, सभी सबको मार दो। क्योंकि इनका जो निवेदन है ये निष्प्रयोग है, ये कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं जिसको गौ का मांस खाना है, मैं इनका इसको गोली मार के पड़ा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये हुआ था। और तभी उसमें से एक साधु ने उसी प्रधानमंत्री को बताया कि आपको इतना मिथ्या अहंकार है, आपका वंश ही वंशहीन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। और हम में से साधुओं में से एक दिन वो ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो इस देश को चलाएगा। ये उस समय की बात है, अगर आप चाहिए तो आप सर्च करो। ये वही पीढ़ी चल रही थी। वेणा जैसे राजा भी जो होते हैं, निष्प्रयोग है इसका कोई, तभी ब्राह्मण लोग का एक शाप बस हो गया था। तो सभी लोग ब्राह्मण लोग, सभी भृगु मुनि आकर बोलते कि एक बार वेणा को बता देते ये बराबर नहीं है, अगर सुना तो ठीक है, नहीं तो हमारा ब्रह्म मंत्र से उसका वध करना पड़ेगा। तो तुरंत सभी ब्राह्मण लोग चले जाते हैं और बोलते वेणा तुम अपना कर्तव्य को समझो, तुम राजा हो, राजा बनने के बाद तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ब्राह्मण कुल का ये विनाश नहीं कर सकते हो। जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ का पालन करो, और जहाँ जाप कर रहा है उसको जाप करने दो। यही अगर तुम इस अधर्म करोगे तुम्हारा विनाश होगा। तो हरी शुभ कर दो, तुमको पता नहीं है, तुम मुझे सिखा रहे हो। मैं राजा हूँ, मुझे पता है मैं कैसा कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे प्रजा हो, जो मैं बोलता हूँ करो, अगर नहीं करो तो तुमको जेल कारावास में डाल दूंगा। तो तभी देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं। तो सभी ब्राह्मण, ब्रह्म शक्ति क्या था उस समय का, ब्रह्म शक्ति उस समय भी नहीं आज भी है, जिसको विश्वास है वो रखेंगे। ब्रह्म अपराध, ब्राह्मण अपराध या वैष्णव अपराध, ये बड़ा साधु का अपराध मतलब उसका विनाशकारी है। ब्रह्म शक्ति क्या था, उस सभी ब्राह्मण लोग ने बोला तुम्हारा इतना विद्या अहंकार, उन्होंने शब्दों के उच्चारण से वेणा का हत्या कर दी। सिर्फ शब्दों के उच्चारण से, उतना पावर था ब्रह्म वाक्य से। और वेणा उसी टाइम मूर्छित हो गए। जैसे मैंने वो शब्द बोला, हमारे इसमें तुम्हें इसका रिएक्शन मिलना ही नहीं था, सिर्फ तुम्हें नहीं आने वाला पीढ़ियों को भी मिल जाएगा। और हुआ भी वैसे ही हुआ। उसी तरह उस टाइम में, उस समय भृगु मुनि सभी लोग मिलकर उनको बोलते कि तुम्हारा वो हत्या, उसके शब्दों के उच्चारण से हत्या कर। और वेणा उसी टाइम मर गए। अभी वापस राजा नहीं है
और उस समय पुत्र मोह की वजह से माता सुनीति अपने पुत्र के जो बोलते ना मृत शरीर को लेके वो एक बताते कि इसमें बोलते ना एक बक्से में रख देती है। आसक्ति थी उसको, मेरा पुत्र जो भी हो, क्रूर हो तो वो माता का करुणा है, कितना वो माता की करुणा है। मालूम है मुझे मेरा पुत्र एकदम बिना योग्य था, उसके पास फिर भी मेरा ही बाल बच्चा था ना। गांधारी भी जैसे बोलते ना, गांधारी को बहुत पुत्र, जब लास्ट में युधिष्ठिर महाराज को भी शाप देते हैं, भगवान कृष्ण के लिए भी वो शाप कर, तो एक पुत्र मोह बोलता था कि सुनीति ने वो शरीर मृत शरीर को लेके एक बक्से में डाल देती है और उसमें पूरा प्रकार की जो हर्ब्स है आयुर्वेदिक का जो उसको डाल के ढक देती है ताकि उसको वो बोलते हैं शरीर डिकम्पोज मतलब स्मेल ना आ जाए, वैसे ही रहने दो, मेरा आसक्ति मेरा पुत्र है। और ये लोग ग्रामीण लोग बोले चले रहने दो उसके पुत्र हुआ। अब ये लोग वापस सोचने लगे क्या करें क्या, अभी वापस राजा नहीं है, अभी तो वेड़ा भी नहीं और राजा कैसे। तभी गुरु मुनि ये सब लोग सोचने लगे करे क्या, राजा तो चाहिए, क्योंकि जैसे राजा निकल गया वहां से आ गए, बोलते ना राजा निकल गया तो चोर लोग चालू हो गया, चलो लूट रहा, कोई है ही नहीं, नो रूल्स, सभी घर में लूट मार सबको हरे सब एवरीथिंग। तो इन लोगों को पता चला ये तो गलत है और इनके पास उतना शक्ति था, चोरों को पकड़ गया उनको भी शांति दी, पर मैंने बोला ये ब्राह्मण का कल्चर नहीं है, ये ब्राह्मण लोग का कार्य नहीं है, ये क्षत्रिय लोग का कारण है। जैसे विश्वामित्र मुनि जब वो तपस्या कर रहे थे तभी वो दशरथ महाराज के पास क्यों आए, क्योंकि उनको पता था ब्राह्मण मेरे ब्राह्मण ब्रह्म वाक्य में मैं सबको राक्षसों को मरीचा और सुबाओं को मार सकता हूँ, पर ये मेरा कार्य नहीं है, दिस इज नॉट माई ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय। अगर पुलिस का ड्यूटी हम करने लगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, जेल में। अगर हम लोग ने लॉ उठा के हमने अरे मेरा उसने मारे मैं भी मार दे, नो यू वांट टू हैव डिपार्टमेंट है, मालूम है उसने गलती किया बट डिपार्टमेंट वो मेरा कार्य नहीं। उसी तरह उतना उनको पता था चोर लोग आ रहे ये सब लूट मार हो रहा है पर ये हमारा कार्य नहीं। रूट कॉज क्या है, राजा नहीं है, राजा नहीं है, जिस देश में राजा नहीं तो होने वाला ही है। तो तभी उन्होंने विचार विमर्श किया, वापस उन्होंने सोचा वो मृत शरीर को वापस लेके आओ, मृत शरीर को वापस लेके आ जाओ और उसमें से पूरा वो जितना आयुर्वेद निकाले और बोले मंथन करो, इस शरीर का मंथन करो, वेणा का शरीर है उसका मंथन करो। तो पहले उन्होंने क्या मंथन किया, उसकी जंगा, ये जंगा है ना उनकी, उसका मंथन करने लगे। जब वेणा का जंगे का मंथन करने लगे तभी एक क्रूर व्यक्ति जन्म लिया उसमें से, एकदम क्रूर, इतना सा छोटा सा, क्योंकि जितना भी वेणा का जो दुर्गुण था, दुर्गुण वो सब वो क्रूर रूप में एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वो वेणा का मतलब एकदम दुराचार स्वभाव वो था। और बताते कि क्यों ऐसा आया था, क्योंकि वेणा के जो नाना थे वो कौन थे, वो द ग्रैंडफादर, मैं अभी बताया आपको, यमराज मृत्यु, इसलिए मृत्यु एकदम क्रूर रहता है। तो ये व्यक्ति जब निकलता है एकदम क्रूर व्यक्ति था तो उसको जाने दिया और वो कहाँ गया, जंगल और हिमालयस में। आज भी उनकी जो ये जो बोलते ना पीढ़ी आज भी है, कौन है वो जो जंगल में रहते हैं, करेक्ट, जिसको कुछ कल्चर ही नहीं है, कैनिबल्स, इंग्लिश में उसको बोलते कैनिबल्स, जो व्यक्ति उनके इसमें आ जाते हैं उसको पकड़ के खा जाते हैं। आज भी है, आर्टिक एंटार्टिक और जो आदिवासी उनको कोई कहते हैं, उनके हिसाब से जो खाए मिला खाते रहते हैं, वो वहाँ से निकला हुआ चीज़ है। वेणा से जो क्रूर व्यक्ति निकलता है वो उनसे जो वो उनका इंचार्ज बनाया गया था, तुम जंगल में चले जाओ और वहाँ के तुम राज देख ले रहो, जंगल हिमालय जहाँ कोई रहता नहीं है वहाँ पे रहे। अब वो तो निकल गया, अभी और क्या है, ये भुजाओं का मंथन करो, भुजाओं को मंथन करो और जब वो भुजाओं का मंथन होता है तब दो व्यक्ति निकलते हैं,
एक पुरुष और एक स्त्री, और वो थे महाराज भृगु और उनकी पत्नी थी महारानी अर्ची, जो लक्ष्मी देवी की अंश थी, और जो भगवान नारायण के जो अंश थे वो है महाराज भृगु। देखिए वेणा से ही निकलते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, कमल का पुत्र, कमल का जो फूल है, फूल लोटस फ्लावर कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है, पर वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अलग है। कभी कभी अच्छी चीज कभी भी क्रूर चीज से ही निकलता है। जैसे डायमंड, हीरा, हीरा का पहले निकलता है, हीरा निकलता है, उसको पॉलिश, हीरा निकलता है चारकोल से, कोल में से उसको पॉलिश कर करके हीरा होता है। उसी तरह वीणा के मंथन करके से उसमें से सब दुराचार निकल गया है बाद, उसके बाद भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। महाराज भृगु और अर्ची दोनों भगवान नारायण और लक्ष्मी नारायण के रूप में अवतार लेते, तभी उनके आगमन में सबको पता चलता है ये भगवान के अवतार हैं। हे भगवान आप अवतार लिए। सिर्फ यही नहीं, उनके अंगों में, उनके शरीरों में सभी प्रकार के बताते कि चिन्ह थे, चिन्ह, जिससे पता चला कि वो विष्णु के अवतार है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते, अरे वो भगवान विष्णु का अवतार है भाई, वो दिस इज नॉनसेंस। किसी को भी शास्त्र में पहले बार उसका नाम भी नहीं है, वो कल से उठ के बोला, कल मैं भी उठ के बोलता मैं भगवान का अवतार हूँ, मैंने इतना सब, अरे कोई भी नहीं। अच्छा योर नेम ऑथेंटिक शास्त्र में कहा लिखा है? कुछ बॉडी में चिन्ह है। ऑफकोर्स आजकल बोलते हैं टाटू आ जाता है और चिन्ह, पर मेन इंपॉर्टेंट है शास्त्र में होता है। और दूसरा है बहुत सारे सिम्टम्स है। आजानुलंबितो भुजौ, आजानुलंबित, ये जो भुजाएं हैं वो पैर के नीचे तक जाना चाहिए, वो एक साइन है विष्णु के अवतार। आजानुलंबितो भुजौ, ये घुटने से नीचे तक आना चाहिए। अगर आप खड़े होके, आप बैठ के नहीं, खड़े होके बैठ कर किसके भी घुटने के नीचे जाते हैं, खड़े होके आजानुलंबितो भुजौ। महाप्रभु श्री चैतन्य के जो हाथ थे वो इतने बड़े लंबे थे, व्हाट सिंबल, इज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, कृष्णा, ये सिंबल है। इससे पता चला ये विष्णु के अवतार है। और सभी भृगु, दुर्वास मुनि, बहुत सारे अत्रि मुनि, बहुत सारे सेजेस है, तुरंत उनको पता चला भगवान विष्णु अवतार लिए थे। और तुरंत सभी देव देवगण ऊपर से फूल बरसाने लगे, भगवान ने अवतार लिया है अच्छी के रूप। और अलग अलग प्रकार के देव देवगण भगवान के आके स्तुति करने और उनको तोहफा, उनको त्योहार, ये बताते ना, गिफ्ट उनको भेंट ला के देते हैं। जैसे अपने जो पहले कुबेर भगवान कुबेर, उनको एक बोलते कि सिंहासन प्रदान करते हैं, भगवान आपके लिए सिंहासन। और उसके बाद ये जो वरुण देव, उनको बोलते ना, एक बताते ना रॉयल अम्ब्रेला, छतरी। ये छतरी नहीं, राजा जैसे चलते हैं उस समय एक रॉयल्टी रहता है, उनको सिर्फ राजा के से ऊपर रखते हैं, वैसा एक छतरी वो रखते हैं। और उसके बाद वायु, उनको एक चामर प्रदान करते हैं भगवान वायु, क्योंकि विष्णु आता है, कुछ तो उनको आगमन ही बड़ी बात है। और उसके बाद ये जो ब्रह्मा जी, उनको कवच प्रदान करते हैं, और विष्णु उनको सुदर्शन प्रदान करते हैं, लक्ष्मी देवी उनकी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, भगवान शिव उनको एक तलवार देते हैं जिसमें 10 मुंह बोलते कि ये चिन्ह थी, इसका चंद्रमाता का चिन्ह था उस तलवार में। और पार्वती उनको बोलते का दूसरा एक अस्त्र प्रदान करती है, और बहुत सारे अस्त्र अनेक व्यक्ति प्रदान करते हैं, और वो जैसे बाण और धनुष और ये सब। और उसके बाद सभी लोग उनकी स्तुति करने लगते हैं, भगवान आप ऐसे हो, आप पृथ्वी के रूप में अवतार लिए। तो तभी वो रोकते हैं, स्टॉप, मैं अभी आया, मैंने कुछ कार्य किया भी नहीं है और तुम मेरी स्तुति करने लगे। ये बोलते ना तुरंत बोलते, आप ऐसे होने वाले, आप ऐसे हो, आप इतने बड़े महान।
तभी बोलते ना, कभी कभी ज्यादा होते ना चोरे लक्षण, अति भक्ति चोरे लक्षण। ऑफकोर्स मतलब भगवान पृथु महाराज को तो तुरंत बोला रोकिए, आप मेरी जो स्तुति कर रहे हैं, पहले मैंने कुछ कार्य किया ही नहीं, और अगर मैंने कार्य नहीं किया तो ये अननेसेसरी आपका स्तुति हुआ, इसलिए मुझे पहला मेरा फर्ज तो निभाने दीजिए। अगर मैंने ये आपका एक्सपेक्टेशन की जितना, आपकी अपेक्षा की जितना मैं पहुंचा, तो फिर आपका योग्य बनता है मुझे स्तुति करना, पर मैंने किया नहीं। ये उनकी नम्रता थी। नहीं तो हम लोग बोलते अरे प्रभु जी आप इतने बड़े हो, आपने क्या क्या नहीं किया, आप सुबह इतने उठते हो, आपने इतने लोगों को प्रचार, हम यहाँ बराबर तो है। फर्स्ट प्लीज, अच्छा प्रशंसा सुनने के लिए हमारे कान खुलते हैं, अरे और बोलते जाओ और बोलते। जब कोई सत्य बोलता है प्रभु ये क्या किया है, हम बोलते ये निंदा कर रहे हो, मेरा निंदा कर रहे हो आप लोग, ये इतना बड़ा। एक्चुअली निंदा से एक हमारी संत महापुरुष है दक्षिण में, वो बोलते निंदा से करीबी को, और इधर संत तुकाराम महाराज भी बोलते अवर में, ये जो निंदा करने वाला हमारा पड़ोसी होना चाहिए, क्योंकि वो हमको जमीन में खड़ा रखता है। बी रूटेड, भाई तेरा स्थिति इधर ही है, कितना ऊपर उड़ते मत जाना, इधर ही है तो कितना। तो निंदा से करीब एक निंदा करने वाला रहना चाहिए, तभी हमें पता चलता है हमारा कौन है। स्तुति करने वाले बोलते वो अच्छा है, और कभी कभी चापलूसी देता है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसी तरह करते। प्लीज अब रुको, मेरे को अपना कार्य तो करने दो, लेट मी डू माई ड्यूटी। अगर मैं कार्य किया तो फिर मैं आप प्रशंसा करने का योग्य। तो ये था महाराज पृथु का। ऑफकोर्स इनकी क्या क्या कार्य थी और क्या युग धर्म था, इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा चीज किया है जिसमें इनको आज भी अर्चना, और उन्होंने कैसा सिर्फ नम्रता विनम्रता यहाँ पे नहीं, आने वाली कहानी में जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो तभी उनकी विनम्रता के बारे में आज भी भागवत में उसकी गुणगान किया गया है। टुडे, इवन टुडे, स्वयं विष्णु कैसे आते हैं उनका स्वीकार करना, और कैसे उनकी गुण के बारे में और तीव्र गति से उनको बताते हैं। तो इसको आज यहाँ इस अपनी कथा को यहाँ ही विश्राम देते हैं, और अगले मंगलवार जब मुझे अवसर मिला तो ये कहानी को आगे शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण।